देखना अब। Okay, yes friends, please confirm, is it audible? Yes, write in the chat box if it's audible or not. Yes, please write in the chat box if it's audible or not. Okay, Sanam, so I think it's audible, yeah. Hanji, please confirm, yeah, it's audible, na? Okay, so let's start with today's class. I will take some more questions on that chapter. So see, now here we are doing the chapter this. We have started with this chapter, so that is lines and angles.
We are doing this chapter lines and angles in detail. Okay, so we are going to solve some more questions on that, and we have covered, I will say, some properties related to that. If we are given with some parallel lines, and if we are given with some transversal, so these two angles are, I will say, that is corresponding angles. Okay, and this 1 and 2 are corresponding, so that will be equal, and 2 plus 3 will be your, that is interior angles. Okay, so sum of interior, I will say, this angle, so that is 180. Am I clear or not? And now this is angle 2 plus angle 3, so sum of these angles ka jo sum hoga, so that is 180. Angle 1 is equal to angle 2 corresponding. Yes or no? And I will say angle 3 is also equal to angle 4, that is corresponding. Clear, students? Yes. Aditya, you can, for RRB JE, see, please contact on this number. If you are having any general query, so please contact on this number. So that is of Gurvinder sir. तो गुरविंदर सर से आप बात कर सकते हैं यार, इन केस यू आर हैविंग एनी क्वेरी. ओके, तो आप गुरविंदर सर से बात कर सकते हैं. तो ये मैंने अभी तक बताया था आपको. इसके अलावा alternate interior angles, you know. Okay, so this angle will also be equal to this angle, so that is angle 4 is equal to angle 2. ठीक है, तो सिमिलरली मैं दोबारा से वो बना सकता हूं. देन उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इफ यू आर हैविंग टू लाइंस लाइक दिस, so this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to. Okay, so angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Okay, okay. So I think we have covered up to this. So corresponding angle, alternate interior angles, then sum of these angles. So that is 180. Okay, so let's start with today's topic, I will say. ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं यार. तो ये सारा मैं ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ. लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, रे क्या होता है, देन एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देन लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है, 180. देन उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है. सो दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Yes, please try to solve this question. PR is parallel to QU.
हाँ जी, please try to solve this question. So you are having two lines PR and QU, and angle STU is given to you as 30 degree, and angle SUT is 90, and you have to find out angle PRS. So you have to find out this angle. Yes, please try to solve. Okay, so Aditya, so let's do this question. So यार angle PRS निकालना है मुझे इसमें. Let's try to solve this question. अब देखो क्या है, जो पैरेलल लाइंस है ना PR और QU, ये जो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो इसमें पता है कि ये जो भी इन्हें लाइन कट करेगी वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी. So that will do the work of transversal. Now you can say this is a triangle, so that is triangle SUT. Now sum of angles of a triangle is 180. So angle S is 60. Sum of angles of a triangle is 180. यही होता स्टूडेंट्स. तो ये 60 हो जाएगा यार. Yes or no? If this is 60, so I will say this has to be 120. This has to be 120. Yes or no? So this will form a linear pair here. Straight line angle will be, I will say, that is 180. Yes or no? If this is sorry, so angle, total angle will be 180. So if this is 60, so this has to be, remaining has to be 120. Yes or no? तो इसका मतलब जो एंगल क्यू एस टी होगा वो 120 होगा, और जो एंगल आपका है दैट इज टी एस यू वो 60 है, और ये टोटल आपका लीनियर पेयर बनाएगा 180. तो अगर सर ये 120 है, इफ दिस इज 120, तो सी हियर नाउ, अगर यार दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है, एंड यू आर हैविंग दिस एंगल एज 120, तो ये वाला एंगल भी तो 120 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर और नॉट? इफ दिस इज 120, सो दिस विल आल्सो बी 120. यही तो किया आपने. दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग, ये कोरस्पॉन्डिंग, ये कोरस्पॉन्डिंग और ये कोरस्पॉन्डिंग. यस और नो? तो ये अगर 120 तो ये भी 120 होगा. तो जो एंगल पीआरएस है वो कितना होने वाला है? 120. अगर ये 60 था तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 होगा, और तुम्हें पता है जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो सम होता है दैट इज 180.
हाँ जी, तो ये जो आप बोल सकते हो कि सर ये जो एंगल्स होते हैं, दिस एंड दिस, यू आर हैविंग टू पैरेलल लाइंस, तो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा? 180। कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, क्लियर? So if this is 60 from vertically opposite, this will also come out to be 60, and this, these are consecutive interior angles, तो इनका सम कितना हो जाएगा आपका? So that is 180। तो अगर ये 60 है तो इसे 120 होना पड़ेगा, अगर ये 120 है तो इसे 120 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो जैसे मर्जी समझ सकते हो आप। हाँ जी, क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखो यार जल्दी से। हाँ जी, इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स डू। हाँ जी, यस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, so AB is parallel to CE, AB parallel to CE, okay, and BAF is, I will say, 115, you are given with this angle. AFD is this, AFD is 30, AFD is 30, EDF, ओके, सो 145, लेट्स चेक। तो अगर यार ये 115 है तो ये भी 115 होगा, दो पैरेलल लाइन, और AF क्या करेगी? ट्रांसवर्सल काम करेगी, करेगी या नहीं करेगी? हाँ जी, दिस इज 115, तो ये भी तो 115 होगा। नाउ ये ट्राइंगल हो DCF, ट्राइंगल DCF में all of you know, so that sum of angles of a triangle
इज 180. तो एंगल सी 115, एंगल एफ, सो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ इज 180. हाँ जी, सी कितना है 115, एफ कितना है 30, एंगल डी, सो दिस इज 180. तो कितना हो जाएगा, एंगल डी कितना हो जाएगा, सो दैट इज 35. सो दैट इज 35, यस और नो. तो यार अगर ये 35 है तो इसे कितना होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो लीनियर पेयर होता है, सो दैट इज 180. तो ये 35 है, टोटल तो 180 है, तो 180 माइनस 35 कितना हो जाएगा, दैट इज 145. यस और नो स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन, उस पे ट्रांसवर्सल आई ए एफ. सो ये दो पैरेलल लाइंस थी बी ए, एंड यू आर हैविंग ई सी, एंड सो 115 115. तो ये 115 हो गया. देन मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, डीसीएफ ऑलरेडी ट्राइंगल था, 30 दिया हुआ था, 115 मेरे पास आ गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से. ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, उस पर एक ट्रांसवर्सल अगर तुम गिराते हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगी वो. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्रिएट करेंगी. देन कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, जो कि ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी 145 एंड दिस इज 35. तो ये बचा हुआ एंगल 35 होना चाहिए. अब सर ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा. क्लियर है. अब इस पे क्या दे रखा है उसने, इतना एंगल ऐसे दे रखा है, इतना एंगल 35 है, तो इतना एंगल मुझे 180 अगर बनाना तो इसे 145 बनना पड़ेगा. यस और नो. हाँ जी, तो आई थिंक क्लियर होगा. तो ये ऑलरेडी मैं जो आई विल से जो अभी तक जो मैंने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं ज्योमेट्री के, सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रॉपर्टीज related to angles and these parallel lines. So we are just practicing. Okay, so we are trying to solve a lot of questions on this. Yes. So I think you must be clear with this question also. So let's proceed further. Find angle BOC. Yes, try to do this question. BOC निकालना है यार मुझे. So we have to find this angle. I will say BOC. So this angle we need to find out. Sorry. हाँ जी, BOC, this angle theta I will say we need to find out. Yes, answer from your side 149. Yes, let's check Aditya. So if this is 31, as you know, this is 31. So अगर ये 31 है तो ये भी 31 होगा यार. Yes or no, vertically opposite. तो एंगल BOD या DOB जो इसका नाम दूंगा वो एंगल AOC या COA के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट. तो दिस 31 विल बी इक्वल टू दिस 31. यस और नो. अब एक लाइन लो यार, AB लाइन है, उसमें ये एक एंगल पूरा कितना होगा, लीनियर पेयर बनाएगा 180. यस और नो. अब इसमें से मुझे कुछ एंगल दे रखा है ऑलरेडी AB पर, ये वाला एंगल AOC दे रखा है मुझे 31.
तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 माइनस 31। तो बचा हुआ एंगल कितना होना है? 149। Okay, so answer will be 149. So I think you must be clear with this question. So let's do next question. Find x plus y. Find x plus y. Yes, try to solve this question. Again, I will say. So this is O point. यार ये O point है जहां पर ये सारी lines cut कर रही हैं. This is U, this is W, this is V, this is X, this is Y. तो x और y का सम बताना है यार. हाँ जी. आपको पता है यार किसी भी पॉइंट के अराउंड जो सम ऑफ एंगल्स होता है सो दैट इज 360. 360 है. तो किसी लाइन पे क्या बनता है? लीनियर पेयर. सो दैट इज 180. 180 180 ऊपर 180 नीचे. ठीक है. तो यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो अगर मैं लेट से यू डब्ल्यू लाइन कंसीडर करता हूं तो यू डब्ल्यू लाइन में 90 2x प्लस 3x, तो इसका जो सम बनना है दैट इज 180. लीनियर पेयर. यस और नो? हाँ, लेट्स चेक आदित्य. देन नेक्स्ट वन इज y 105 और 3x. सो दैट इज यू डब्ल्यू. ये ऊपर वाला था लीनियर पेयर, ये नीचे. ठीक है. तो y प्लस, सो y 75 आ जाएगा यार. हाँ जी. ठीक है. इस तरफ चेक कर लो. 90 प्लस 5x इज इक्वल टू 180.
हाँ जी, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 93। हाँ जी, so I think you must be clear with this. So let's do another question. ओके, तो यार ये एंगल निकालने जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जिन एंगल्स पे, सो यू हैव टू फाइंड आउट दीज एंगल्स आल्सो। Yes, answers from your side for this question. हाँ जी, so this is I will say if this is 25, so this will also be 25, vertically opposite. Yes or no? तो मुझे यार ये एंगल फाइंड आउट करना है पहले तो। हाँ जी, इतना 120 है, तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना होगा एंगल 180, और ये वाला भी 180 होगा। तो ये टोटल एंगल कितना होने वाला है यहां तक 120 प्लस दिस एंगल, सो दिस विल बी 180। तो इसका मतलब इसे 60 होना पड़ेगा लीनियर पेयर बनाने के लिए। लीनियर पेयर हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल AFE, ट्राइंगल AFE, एंगल A 60 है, एंगल E 25 है, तो एंगल F कितना होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सो दैट इज 180। यस और नो? तो 60 प्लस 25 दैट इज 85। यस और नो? सो दैट इज 85। हाँ जी, तो 180 माइनस 85 कितना हो जाएगा? 95। यस और नो? सो दैट वुड बी 95। तो ये 95 हो जाएगा यार, ठीक है। तो ये अगर 95 हो जाएगा तो इसे कितना होना पड़ेगा? इसे दोबारा लीनियर पेयर बनाना पड़ेगा। यस और नो? तो इसे कितना होना पड़ेगा? 85 होना पड़ेगा। बताओ। तो इसका मतलब ये जो एंगल एफ है ये कितना आने वाला है? ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर 85। यस और नो? आंसर भी दे, आप इस एंगल का नाम भी दे सकते हो, एंगल BFD बोल सकता हूं इसे। एंगल BFD इज 85।
यस और नो? हाँ जी, प्लीज चेक योर आंसर. Triangle FBD. So that will be angle F plus angle B plus angle D. So that is 180. हाँ जी, एंगल F कितना है 85, एंगल B कितना है 40, एंगल D कितना है दैट इज 180. तो 180 माइनस 25, 180 माइनस 125. हाँ जी, कितना होने वाला है ये? दैट इज 55. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 55. ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने? FBD. हाँ जी, अगेन ये जो पूरा होगा, ये पूरा जो एंगल होगा स्ट्रेट लाइन पर है, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो दिस शुड बी 180. तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55, so that is 120. हाँ जी, so that is 125 रहेगा एक क्वेश्चन मार्क, और दूसरा क्वेश्चन मार्क रहेगा एक 85 और एक 125. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक क्लियर होगा यार ये क्वेश्चन. ठीक है. CFE. हाँ जी, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ठीक है, जो कि फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है एफ तक, और उसके बाद मुझे एंगल डी सी ई निकालना है. दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट, डी सी ई. तो ऐसे है यार. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करने वाली है, ए ई ए एफ ई. ठीक है, तो मुझे ये एंगल निकालना है यार, एंगल डी सी ई. यस, कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल? यस, 155. Sonam is saying 155. Let's check.
यार ये 115 है तो ये भी 115 होगा। दो पैरेलल लाइंस ए बी सी डी जिसे फर्दर एक्सटेंड किया एक ट्रांसवर्सल ए ई, तो ये 115, ये भी 115 कॉरस्पॉन्डिंग। यस और नो? तो ये 115 और 40, तो दैट इज 25, तो ये 25 होगा, ये 25 होगा। यस और नो? so this is 25, so this plus this will sum out to be, so that is 180। तो अगर ये 25 है तो इसे कितना बनना पड़ेगा? 155। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। Okay, so I think you must be clear with this question also, so let's do another question. हाँ जी, एंगल टी एस आर वी नीड टू फाइंड आउट। सो दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यार ये दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी। हाँ जी, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, क्यू आर जिसमें आई विल से इज पैरेलल टू पी एस, क्यू आर पैरेलल टू पी एस है, क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जितनी भी लाइंस हैं ये एज अ ट्रांसवर्सल काम करेंगी, बीच में जो पी आर है, एस आर है, पी क्यू है, तो एज अ ट्रांसवर्सल ये काम करने वाली हैं इफ यू आर हैविंग this these parallel lines। okay, so now we need to find out this angle, angle TSR।
हाँ जी, so this is x, this is 90, this is also x. So 90, so I will say triangle PQR 90 plus x. So 90 plus 2x is 180. 2x is 90, so x is 45. हाँ जी, तो ये 45 हो जाएगा यार. So x is 45. This is also 45. ये भी 45 हो जाएगा. Alternate interior angles. Okay. And I will say now you need to find out angle TSR. हाँ जी, angle TSR हम बता सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी. So this is 20, this is x. So 20 plus x होगा यार, पूरा एंगल r, SRQ, ये जो पूरा एंगल होगा, so that is 20 plus x. दो पैरेलल लाइंस हैं. इफ यू आर हैविंग एनी ट्रांसवर्सल, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 20 प्लस एक्स होगा. और ये एंगल क्या है? TSR. तो ये भी 20 प्लस एक्स होने वाला है. एक्स कितना मेरे पास? एक्स इज 45, तो 20 प्लस 45 कितना होगा? 65. तो एंगल TSR कितना होने वाला है? सो दैट इज 65. 155 नहीं होगा यार अजीम. हाँ जी, क्रॉस चेक करो यार एक बार. वैसे भी अगर तुम ये वाला ट्राइंगल ले लो, 45 और 20 कितना हो जाएगा? 65. तो ये अगर 65 है टोटल, हाँ जी, तो ये 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा? तो दैट इज 115. तो ये 115 होएगा. अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, दिस RPS ट्राइंगल ले लो आप, तो ये 45, ये 20, तो ये 115. तो ये लीनियर पेयर जब बनाओगे तो 180 माइनस 115 दैट इज 65. तो वहां से भी आ सकता है आंसर. ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहने वाला है? दैट इज 65 डिग्री ओनली. क्रॉस चेक कर लो यार एक बार. हाँ जी, मेक श्योर आपका आंसर करेक्ट है. ओके, so let's do another question. और भी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में, आई विल से.
ओके। हाँ जी, तो एक्स वाई जेड, तो ये एंगल निकालना है यार मुझे। आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। यस, यस अजीम, आंसर फ्रॉम योर साइड। और देखो क्या है, ये जो आपके पास है ना, जो लाइन है आर एस, आपको पता है इस पे ये वाला जो एंगल है, ये जेड, ये लीनियर पेयर फॉर्म करने वाला है 180। यस और नो? तो ये अब इसका उसने क्या दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन दे रखा है और ये वाला पोर्शन दे रखा है। तो इसको टोटल को तो सम 180 होना है। तो एक दे रखा है 120 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे दे रखा है 30, सो दैट इज 150। तो ये बचा हुआ कितना होगा? 30। बचा हुआ कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी 30। हाँ जी, इतना चेक करो यार, इतना क्लियर है या नहीं? हाँ जी। अब देखो क्या है, ये दो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस पैरेलल दे रखी हैं। लेट्स चेक यार, पी क्यू और आर एस उसने पैरेलल दे रखी हैं। और अब देखो क्या है कि मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। ट्रांसवर्सल का जो काम करने वाला है वो मेरे लिए एक्स और जेड करने वाला है, ट्रांसवर्सल का। यस और नो? नाउ आई विल से, ये जो एंगल है ना 120, यू आर गिवन विद दिस एंगल 120। तो मैंने अब ये वाली जो लाइन ली है, जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये लाइन मैंने उठाई, तो ये 120 है, तो ये पूरा भी तो 120 होगा यार। मानते हो या नहीं मानते हो? अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। Alternate interior angles, yes or no? If this is 120, this total has to be 120, and if this total has to be 120 and some part of it is 60, so other part has to be 60। yes or no? तो एंगल x कितना होने वाला है? ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एंगल x 60 होने वाला है। हाँ जी, एंगल z कितना है? 30। हाँ जी, तो एंगल 60 प्लस वाई प्लस जेड इज 30, दैट इज 180। तो y कितना हो जाएगा? सो दैट इज 180 माइनस 90, सो दैट इज, आई विल से 90। हाँ जी, सो एंगल y इज 90। यस, 90 किसी ने आंसर किया था। यस अजीम, यस योर आंसर इज करेक्ट। सो एंगल y 90 होने वाला है। हाँ जी, आई थिंक क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको। हाँ जी, सो दिस वाज 8th क्वेश्चन। एस क्यू इज पैरेलल टू आर टी, एस पी क्यू इज 130। एंगल पी क्यू एस इज 40।
एंगल पी एस आर इज 40. फाइंड वैल्यू ऑफ ए. हाँ जी, ए बताओ यार कितना होगा. हाँ जी, तो जो एस क्यू और जो आर टी है ये पैरेलल लाइंस हैं, ये बोला है उसने. एस क्यू और आर टी पैरेलल लाइंस हैं. तो मुझे ए निकालना है, और ये एंगल्स दे रखे हैं मुझे 130, 40, 90. ये वाला एंगल दे रखा है 40. ओके. सो यस. हाँ जी. आई थिंक यस, आंसर फ्रॉम योर साइड. यस बद्री. सो 130, 40, 40, 90. यार ये ट्राइंगल चेक करो एक बार. ये वाला पी एस क्यू, ट्राइंगल पी एस क्यू 130, 40, 170. तो ये कितना होगा? 10. अगर ये 10 है तो ये 30 होगा. यस और नो. जो एंगल एस है उस, मैं उसमें क्या बताऊंगा, जो उसमें एंगल एस है. सो वन एंगल विल बी पी एस आर, एंड पी एस आर आई विल से, जो ये है पी एस आर. सो दैट इज टोटल एंगल इज 40 इज गिवन टू अस. पी एस आर, दैट इज सॉरी, पी क्यू एस, नो नो, PSR is given to you. Yes, that is 40. PSR is given to you as 40. Okay. तो जब मैंने एक फर्दर एक ट्राइंगल लिया, लेट से PQS या PSQ, तो 130, 40 मुझे ऑलरेडी गिवन था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बन जाएगा? 10. तो दिस एंगल वुड बी 10 एंड दिस रिमेनिंग एंगल हैज टू बी 30. ओके. अब देखो क्या है, अब मुझे दो पैरेलल लाइन दे रखी है यार ऐसे, और इन दो पैरेलल लाइंस को जो कट कर रही है वो यही एक लाइन है. सो दैट इज क्यू आर. यही दे रखा है उसने, एस क्यू और आर टी. एस क्यू और आर टी दे रखी है ना उसने. ठीक है.
ओके, सो आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो यार अगर देखो, अब ये वाला अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं क्यू एस आर, तो ये 90 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, 120, 90 प्लस 30 120, तो इस एंगल को 60 होना पड़ेगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो ये 60 हो जाएगा। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, एस क्यू जो लाइन है, इसका ये वाला जो एंगल है ये 60 है। दिस एंगल इज 60 फॉर अस। यही दो लाइंस थी ना यार जो पैरेलल है, एस क्यू और आर टी। तो अगर मैं इसे साफ साफ ड्रॉ करूं तो ऐसे होगा कुछ, एस क्यू और आर टी, ये ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये 60 है, अब मुझे ये वाला एंगल बताना है उसे, ये कहां पर है देखो, क्यू आर टी, क्यू आर टी, सो दिस इज ए, yes or no? So that is alternate interior angle. If this is 60, so A has to be 60. So your answer would be 60. Okay, so I think must be clear with this question also. So let's do next question. Okay, so that was ninth. So this is question is 10th. Find x. Yes, question is find x. AB is parallel to CD. Find x. हाँ जी, so x find out करना यार, we need to find out x. तो AB is parallel to CD. तो ये दोनों ट्रांसवर्सल का काम करेंगी, पी क्यू आर क्यू। हाँ जी, ओके।
if this is 75 and PQ is a transversal, so this has to be 75 vertically opposite. ये 75 है तो ये 75 होगा. These are parallel lines and PQs are transversal, so this 75 will be this also will be 75. I am more interested in this x to find out this x. Yes or no? अगर यार ये 130 है, if this is 130, so ये जो अंदर वाला एंगल होगा लीनियर पेयर फॉर्म करेगा इस स्ट्रेट लाइन पर CD पर. Yes or no? If this is 130, this has to be 50. तभी तो 180 होगा सम. Yes or no? अगर ये 50 है, अब देखो अब इसे भी लीनियर पेयर तो बनाना ही है. Yes or no? इसे बनाना है या नहीं बनाना है? 75 वाले को भी लीनियर पेयर बनाना पड़ेगा. That is 180. तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 105. तो 105 plus 50 plus x is 180. So x is 20. Okay. So this was 10th question. So I think must be clear with this question. AB is parallel to CE. BCFG के पैरेलल है, ABCE के पैरेलल है. Find x. Yes. Please try to solve this question also. तो AB is parallel to CE and BC is parallel to FG. तो दो पैरेलल लाइंस हैं, AB CE के पैरेलल है और BC FG के पैरेलल है. ये एंगल 138 है, ये x है, मुझे x निकालना है. हाँ जी. तो इफ दिस इज 138, सो तो ये भी 138 होगा. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस, ये 138 है तो ये भी 138 होगा. ये 138 ये भी 138 होगा. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग तो ये 42 होगा तो ये भी 42 होगा.
So this would also be 42. Linear pair बनाएगा and this is 42 corresponding. Yes or no? So x is 42. Yes or no? तो ये 138 है तो ये भी 138 होगा. हाँ जी. Corresponding angles. So this has to be 42. Linear pair तो बनाना ही है. And this has to be 42. Okay. तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा. Yes or no? हाँ जी. BC और F. हाँ जी. क्लियर है कि ओके. 30 डिग्री. AB is parallel to CD. Find X. हाँ जी. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड फॉर यू. तो यार अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको पता है तो ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका, हाँ जी, तो ये 30 है. सो दिस हैज टू बी 30. ये 30 है तो ये भी 30 होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स. हाँ जी. बताइए. हाँ जी. इफ दिस इज 100, अब देखो अगर ये एंगल 100 है, ठीक है, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? 80. सम ऑफ कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? सो दैट इज 180. तो ये 100 है तो इसे 80 होना पड़ेगा. तो ये वाला एंगल्स कितना हो जाएगा? 80. तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 80 प्लस 30. सो x प्लस 10 इज इक्वल टू
110. So x is equal to 100 degree. हाँ जी, so I think you must be clear with these questions. So x is 100 degree. ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यार आपको समझ में आ गया होगा. तो ये एक क्वेश्चन था. सो दीज 12 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड. ओके, दिस वाज 11th क्वेश्चन, सो दैट वाज that we have discussed. This was 10th question, and this was 9th question, 8th question we have discussed like this, and we have discussed 7th like this. This was 6th, this was 5th, 4th, 3rd we have discussed, 2nd we have discussed, 1st we have discussed. Okay, so I think आज का लेक्चर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा, और सम आई विल प्रैक्टिस विद यू सम मोर क्वेश्चन. ओके, सो कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्री से. तो ऐसे ही उसके बाद हम ट्राइंगल पॉलीगन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में. ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग योर पीडीएफ, कीप प्रिपेयरिंग. थैंक्स वंस अगेन.